technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. All right, let's begin the broadcast with breaking news. Rahul Gandhi has upped the ante against the Election Commission once again, and the Election Commission has fact-checked Rahul Gandhi while calling the allegations incorrect and baseless. These are the counters that have come in from the Election Commission of India, that allegations made by Rahul Gandhi are incorrect and baseless, that there's no deletion of any vote can be done online by any member of the public as misconceived by Rahul Gandhi. So this comes after Rahul Gandhi launched a fresh attack on the CEC while claiming vote chori in Karnataka. And the counters coming in from the Election Commission as well, calling the claims made by Rahul Gandhi baseless and incorrect. Also emphasizing that online vote deletion is not possible and that Rahul Gandhi has been misconceived. What he's saying is baseless. As far as results of 2023 are concerned, the CEC says must see previous results of Anand. Action was taken in 2023 polls rigging. So that's a counter coming in from the Election Commission on the allegations that have been leveled by Rahul Gandhi. Once again, Rahul Gandhi says hydrogen bomb coming soon. Let's go across to Meenakshi, my colleague, who's joining us from the newsroom with more details. So Election Commission hitting back, point by point rebuttal coming in. Well, absolutely, Swati. So there is a very sharp rebuttal which has come from the side of PEC. It's a point-by-point rebuttal. Without much ado, let's take our viewers to what the Election Commission had to say against Rahul Gandhi over the allegations which he had made. First of all, Election Commission of India officially, something which we had broken according to sources, first only on Times Now, for the Election Commission of India rejecting all the allegations by Rahul Gandhi, calling them incorrect and baseless. Again, as I said, a point-by-point rebuttal. What is the EC's fact check? First, Rahul Gandhi's claim stamped incorrect by the EC. EC says, and I'm going to read it verbatim. First of all, point number one, EC's rebuttal, EC's counter, no deletion of any vote can be done online. Remember, Rahul Gandhi had said that software was used to delete voters' list, that was used to alter the list. EC says, no, that cannot be technically done. 2023, certain unsuccessful attempts were made for deletion of election in the Anand Assembly constituency. FIR was filed by the authority of ECI itself in the matter. Remember what Rahul Gandhi said? Rahul Gandhi said that, ECI was allegedly, according to Rahul Gandhi, indulging in a conspiracy to delete voters. About 6,000 voters named deleted. Rahul Gandhi's allegation. Third counter from the EC, as per records, Anand Assembly constituency was won by a BJP candidate 2018 and a INC Congress candidate in 2023. So this is a point-by-point rebuttal which has come from the side of the poll panel. Swati. Right, Meenakshi, thank you very much for getting us the details. Let's also once again tell our viewers about what Rahul Gandhi said. What did he claim? So, leader of opposition in Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi held another briefing amid vote chori allegations. He said he has 100% solid proof against CEC Ganesh Kumar, who's protecting people who have murdered democracy, and that the H-bomb is yet to come. Congress MP says he will soon release evidence of mass deletions of voters in multiple states. तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ दिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई।
मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये रुकेगा नहीं। Niyamika is also joining us in the broadcast with more details. Niyamika, once again, Rahul Gandhi claiming that he has solid proof, he has 100% evidence. The H-bomb, however, is yet to come, but Rahul Gandhi says that vote chori is happening. Well, yes, indeed, Azad. This is a big allegation which today Rahul Gandhi has made upon the CEC, as he has categorically mentioned that it is the CEC who is trying to protect the murderers of the democracy. He has made these allegations regarding the deletion of voters from the list, as he has given an example of the Alan seat of Karnataka, where the Congress party is claiming that more than 6,000 voters' names were being deleted during the time of elections, and he has given certain examples as well. But the claim which Rahul Gandhi is making is that there was an online applications which were being filed to delete all these number of voters from the list, and he had also called some of the voters on the stage as well. He had asked them about this entire issue, and they had also mentioned that they were having no idea that their names have been deleted, and they don't know that who had filed these online applications to delete their names from the voter list. Today Rahul Gandhi has made this allegation upon the Election Commission of India that they are not ready to share the data with the CID, as it is the Karnataka CID who is doing all the investigation regarding this entire matter. But on the other side, he has also given given a statement in today's press conference that within a week they have to share this information to the CID, because it is very much necessary to the entire country to know that there is this vote chori allegation which is currently going on in this entire country. Right. Niyamika, well, stay on with us, because this has led to another political face-off, another round of political war of words. The BJP has hit back at Rahul Gandhi, rejecting his latest claim, calling it a sign of Congress's frustration. The BJP said opposition remains unfazed even after being fact-checked. है कि डिफीटेड डायनेस्टी के जो डिस्ट्रक्टिव डींगबाज हैं, ये जो डपोर शंख हैं, वो जो है वो उनको लगता है कि इस तरह का भय पैदा करके, भ्रम पैदा करके, काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करके वो प्रजातंत्र को जो है वो परिवार तंत्र का बंधक बना पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। तो ये शुद्ध रूप से आप जो है ये आरोप देश के मतदाताओं पे लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पे नहीं लगा रहे हैं। मैं तो इसको कह रहा हूं देश के मतदाताओं के साथ ये जो है वो आप छल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ श्री राहुल गांधी to make incorrect and baseless allegations, और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि no deletion of any vote can be done online by any member of public. ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। और
no deletion can take place without giving an opportunity of being heard to the affected person. तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, एमएस गिल, टीएन शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया, मलूर विधानसभा के चुनाव को खारिज किया है। क्या 2023 में कांग्रेस ने वोटों के गबन के साथ इस सीट को जीता था? इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के उम्मीदवार मंजुनाथ गौड़ा के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा मलूर विधानसभा में मतगणना के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई। क्या फेराफेरी के साथ कांग्रेस ने सीट जीती थी? राहुल जी, जवाब देना पड़ेगा आपको और कांग्रेस पार्टी को। और आपके इलेक्शन कमिश्नर के समय अगर मैं कहूं, सोनिया जी का नाम जब आया कि नवीन चावला जी की नियुक्ति उन्होंने कर दी, और उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरोप लगाकर कहा था, प्रेसिडेंट को लिख के कहा था कि क्लासिफाइड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नवीन चावला लीक करते हैं। कुछ सवाल आज मैं और पूछना चाहता हूं।
कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करना इनके बस की बात है। और अगर इतना ही दम आपके तर्कों में है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन ने तो आपको बार बार कहा सबूत दो, हल्फनामा दो, ना आप सबूत दे पाते हो और गलत आरोप लगाते हो। क्या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना एक भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का और एलओबी लीडर अपोजिंग भारत राहुल गांधी जी का है? क्या ये केवल घुसपैठिए वोट को बचाने के लिए है? अपने हर तर्क में वो बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी की, अल्पसंख्यक की, लेकिन उन्हीं के वोट की ताकत को कम करने का प्रयास राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स इज द सोल एजेंडा ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी? Is Congress trying to protect infiltrators and their voting rights? राइट्स तो है नहीं, लेकिन अधिकार दिलाना चाहते हैं। राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ है और देश के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के वोट को कम करना चाहते हैं। आलन की बात मैंने आपके सामने रख दी। जो आरोप इन्होंने लगाया उसमें पूछना ही पड़ेगा, क्या वो 6000 वोट डिलीट हुए थे कि नहीं हुए थे? और बीआर पाटिल क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो जीते हैं? तो क्या कांग्रेस ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है? राहुल जी अराजकता फैलाना बंद करें, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र बंद करें। Your sole politics has become to create chaos, then play victim card, and you are always trying to delegitimize democracy. आप ना शपथ पत्र देते हैं, ना सबूत देते हैं, आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में, इनमें विश्वास नहीं है। केवल अराजकता फैलाना, अनरेस्ट पैदा करना और भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र टूल किट गैंग के माध्यम से क्या आप लोग रचने जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास? लेकिन आप जितने मर्जी प्रयास करिए, भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएगी और घुसपैठियों को, जिनको आप वोट दिलाना चाहते हो, उन घुसपैठियों को बेनकाब करने का काम भी हम करेंगे। और ये आपकी घुसपैठिए बचाओ राजनीति को भी बेनकाब हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। अब एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। नीरज जी आप पूछिए। मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव की नजदीक है और बिहार चुनाव में जिस तरह एफआईआर का प्रयोग किया गया तो वहां वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राहुल गांधी इस तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, ध्रुवीकरण कांग्रेस का प्रयास लगातार शुरू से रहा है और ये तुष्टीकरण की राजनीति आज कांग्रेस को इस स्थान पे ले आई कि 2014, 2019, 2024 में भी हारे। मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष इनके बन पाते हैं, लेकिन जब पद मिला तब एलओपी नहीं, उसको एलओबी लीडर अपोजिंग भारत का पद बना दिया।
क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास तुष्टीकरण के अलावा कोई और राजनीति नहीं रही? क्या घुसपैठियों को बचाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा बिहार में नहीं रहा? क्या बिहार के विकास को देखकर कांग्रेस की आंखें इतनी बंद हो गई कि आज वो केवल घुसपैठियों के सहारे बिहार के चुनाव में जाना चाहते हैं? क्या कोई और सहारा इनके पास बचा नहीं है? और आज देख लीजिए, जैसे पहले राहुल जी ने माफिया मांगी है, बिहार के चुनाव के बाद भी माफी मांगने वाले हैं। जी ऐश्वर्या जी। All right, so the Bharatiya Janata Party there holding a press conference. Anurag Thakur hitting out at Rahul Gandhi, saying that if Rahul Gandhi has concrete evidence, then why not go to courts? He says this allegation of vote theory and doing such press conferences, claiming 100% evidence is just a sham on part of Rahul Gandhi and Congress. With that, we're slipping into a very short break. Stay on with us.